Yes, good morning. Good morning. Today we'll be starting with optic nerve and ophthalmic vessels. That is nerve and blood supply of the eyeball. Optic nerve. I want to know कि क्या जानते हो आप optic nerve के बारे में? Yes. Yes, second cranial nerve. और कुछ? Yes. Passes through the. Yes. Cranial fossa पढ़े हैं इसका मतलब. और कुछ? It is a pure sensory nerve. Pure sensory nerve. Okay. ज्यादातर जो नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, बट दिस इज प्योर सेंसरी नर्व. ऑप्टिक नर्व इज अ प्योर सेंसरी नर्व. एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक you know about? Have you heard that eyes are window to the brain? Have you heard this saying? Eyes are window to the brain. It has some scientific logic behind it. This line holds scientific logic behind it. Why eyes are window to the brain? Because the optic nerve which is coming to the eyeball, it is the continuation of the brain tissue only. When you will study the brain, it develops from prosencephalon, mesencephalon and diencephalon. You will study this. Embryology में when we'll study the development, we'll study this कि brain 3 segments में develop होता है, prosencephalon, mesencephalon and diencephalon. And diencephalon जो होता है उसका continuation होती है optic nerve. So it is basically an extension of brain tissue. So that's why it is also known as window to the brain. Now, because it is a continuation of the brain tissue, meninges they continue to cover the optic nerve. जो हम meninges पढ़ते हैं ब्रेन में कवर करने के लिए करती हैं, वो ही कंटिन्यू करती हैं ऑप्टिक नर्व को भी सराउंड करती हैं. The subarachnoid space, the CSF, which we learn that brain is enclosed with, the same optic nerve is also enclosed with those subarachnoid space. It has cerebrospinal fluid in it. So whatever intracranial pressure whenever rises, it is reflected here. Yes, come in. It is reflected here onto the optic nerve. You get my point? That's why it is also known as window to the brain. तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो रहा होता है तो हम लोग आईज में एग्जामिन करके देख सकते हैं उसे. ठीक है ना? कम इन बच्चे. डू यू गेट माई पॉइंट? सो इट इज नोन एज विंडो टू द ब्रेन. ब्रेन में अगर हमें क्या चीज व्हाट इज हैपनिंग वी कैन सी थ्रू द ऑप्टिक नर्व. ओके. नाउ और क्या कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेन इसकी ऑप्टिक नर्व की? नर्व्स जो होती हैं, अगर जनरल एनाटॉमी पढ़ी है हमने, नर्व्स जो होती हैं दे कैन रीजनरेट. वंस यू कट देम दे रीजनरेट. व्हाई? दे रीजनरेट बैक ना. यस, दे रीजनरेट. पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं अगर उन्हें हम काट दें तो वो रीजनरेट कर लेती हैं. ओके. 100% नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक रीजनरेट कर लेती हैं वो. बट ऑप्टिक नर्व डजंट रीजनरेट. रीजनरेट क्यों कर लेती हैं? यू शुड नो द कॉज कि क्यों रीजनरेट हो जाती है वो और यहाँ नहीं होती. बिकॉज ऑफ द यस आई कुड हियर समथिंग. यस यू वर राइट. न्यूरोग्लाइस नहीं, इट इज न्यूरोलेमल शीथ. It is neurolemal sheath. Optic nerve is surrounded by neurolemal sheath. So it doesn't regenerate. Those structures which are, do you get it? Neurolemal sheath जो होती है उसकी वजह से regeneration possible होती है, and optic nerve is not surrounded by neurolemal sheath. Okay. And और कोई difference anybody?
Schwann cells कवर करते हैं ना, myelin sheath is covered made by Schwann cells. Yes, but in brain, yes, come in. Brain में myelin sheath कौन बनाता है? Oligodendrocytes. Okay, myelin sheath is formed by Schwann cells, but in CNS we study oligodendrocytes. They make the Schwann sheath. तो optic nerve में भी Schwann cells नहीं होते, oligodendrocytes, because it is continuation of brain. Only nerve which has the this sheath formed by the oligodendrocytes, not Schwann cells. Is it clear? बाकी जितनी भी नर्व्स हैं उनके अंदर सब फर्स्ट थर्ड ग्रेड न्यूरॉन्स अराइज होते हैं. दे आर फॉर्म बाय द थर्ड ग्रेड न्यूरॉन्स, बट ऑप्टिक नर्व इज फॉर्म बाय द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स. सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, हमारी ऑप्टिक नर्व कहां से स्टार्ट होगी? कोई भी नर्व को हम क्या कहते हैं? स्टार्टिंग कहां से होती है उसकी, और एंड कहां होता है उसका? जो सेंसरी नर्व होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? पेरिफेरी से, क्योंकि वहां से उसे ले जाना है ना इंपल्सेस. बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द इंपल्सेस दे डिसाइड, यस, दे डिसाइड कि द नर्व इज सेंसरी और मोटर. Whatever sensations which are coming from periphery and going towards the central nervous system, that is sensory. And whatever instructions brain is giving to the periphery, that means it is motor. Is it clear? तो sensory का मतलब ये है कि हमारी sensations periphery से central nervous system में रिले हो रही हैं और brain में किसी भी section में रिलीज हो रही हैं. Okay? And motor means brain से, अभी तो मैं बहुत ग्रॉस बात करी बेटा, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और कौन सा कॉर्टेक्स. यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, आई एम टू टॉकिंग ब्रेन. सिर्फ इतना बड़ा ग्रॉस स्ट्रक्चर ब्रेन है ना. तो ब्रेन से जो चीज पेरिफेरी में सेंसेशंस लेके आ रही है, दैट इज मोटर. इज इट क्लियर? तो ये सेंसरी नर्व है. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आई. आई में भी कहां से स्टार्ट होगी टू बी स्पेसिफिक अगर हम जाएं तो? रेटिना, क्योंकि रेटिना ही तो रिसीव कर रही है ना हमारी लाइट. तो रेटिना से ये वहां पर हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, वहां से वही न्यूरॉन्स स्क्लेरा को पियर्स करके बाहर आएंगे एंड दे टुगेदर फॉर्म ऑप्टिक नर्व. आई होप यू पीपल नो आई बॉल की कवरिंग इसको क्या होती है ना? स्क्लेरा, कोरोइड. समझ में आ रही है? ऑप्टिक नर्व की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ ऑप्टिक नर्व, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आई बॉल. Yes, come in. Here you can see these are the two eyeballs. From here optic nerve is starting. ठीक, optic nerve यहाँ से here it will come till here. This is optic chiasma. Optic chiasma. Chiasma मतलब crossover. ठीक है. Both the nerves, इसमें से कुछ फाइबर्स जो होते हैं क्रॉस ओवर होते हैं. यू विल नो कि कौन से फाइबर्स क्रॉस ओवर होते हैं. ठीक है. वी हैव नेजल फाइबर्स, वी हैव टेम्पोरल फाइबर्स. तो नेजल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पर. दिस इज सॉरी, सो दिस इज द पॉइंट वेयर दिस इज ऑप्टिक कियाज्मा. ओके. ऑप्टिक कियाज्मा से अगेन वी कैन सी टू ट्रैक्ट्स विच आर रनिंग बैक. दिस इज ऑप्टिक ट्रैक्ट. ऑप्टिक ट्रैक्ट. ओके, कम इन. दिस इज ऑप्टिक ट्रैक्ट. एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो रिले कहां कर रहा है? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. दिस इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. वी हैव टू बॉडीज, लेटरल जेनिकुलेट एंड मीडियल जेनिकुलेट. आप पढ़ोगे. लेटरल जेनिकुलेट इज फॉर लाइट, आई मीन विजन से रिलेटेड है, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज फॉर ऑडिटरी. ऑडिटरी फाइबर्स जो होंगे वो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में रिले करेंगे. ठीक है. लेटरल जेनिकुलेट, एल मीन्स लाइट. ओके. तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, यहां से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशंस अराइज होंगे एंड दे विल गो टू द कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स.
visual cortex which is present in the occipital lobe of the brain. Okay, समझ में आ गया सबको? Optic nerve, then we have optic chiasma. Okay, then we have optic tract. Okay, then we have lateral geniculate body, and from there optic radiations which are relaying onto the occipital cortex, I mean visual cortex. ठीक है? Now, optic nerve, it is the second cranial nerve, you know, it starts from optic disc. जहां से ये फाइबर्स स्क्लेरा को पियर्स करके बैक ऑफ द आई में आते हैं, आई बॉल में एंटर करते हैं, that portion is known as optic disc. Okay, optic disc से optic chiasma तक हमारी हो गई optic nerve. Is it clear? From optic disc to the optic chiasma, this is optic nerve. It is basically backward continuous. See, first order neurons है ये हमारे सारे. फर्स्ट ऑर्डर रेटिना से जो फाइबर्स डायरेक्ट हमारे अराइज हो रहे हैं, दे आर पियर्सिंग एंड दे आर टुगेदर, बाहर आकर ये सब कॉमन शीथ में आ जाते हैं एंड दे फॉर्म ऑप्टिक नर्व. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बाकी सब क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होती हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है हमारी. ओके, नाउ इट हैज सम फाइबर्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्स ऑल्सो. लाइट रिफ्लेक्स समझते हो? सडन ब्राइट लाइट आती है आपके सामने तो आपकी आंखें बंद हो जाती है ना? दैट इज लाइट रिफ्लेक्स. ठीक है, हमारी आइरिस का जो साइज है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू लाइट. अगर आप डार्क में हैं तो आपका आइरिस, अगर आप देखोगे प्यूपिल जो है उसका साइज चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है ना अकॉर्डिंगली. तो दैट इज लाइट रिफ्लेक्स. इट इज ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्स. तो कंट्रोल करता है वो प्यूपिल का साइज. ओके, तो फ्यू फाइबर्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्स आर ऑल्सो कैरिड इन दी ऑप्टिक नर्व ओनली. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फाइबर्स का मतलब क्या होगा? फिजिक्स में पढ़ा है ये वर्ड हमने कहीं. यस, अवे फ्रॉम दी सेंटर. ठीक है, यानी कि हम आई बॉल से, यस, ओके, I already told you it is an outgrowth of brain. Okay, so it is not covered by neurolemmal sheath, so it doesn't regenerate. It is not covered by the neurolemmal sheath. Basically, neurolemmal sheath is responsible for regeneration. I already told you this. Peripheral nerves जो होती हैं ये regenerate कर जाती हैं इसीलिए क्योंकि इनके ऊपर sheath होती है. Optic nerve doesn't have sheath, so it doesn't regenerate back when cut, of course. फाइबर्स जो होंगे ऑप्टिक नर्व के 2 to 10 माइक्रोन्स डायमीटर में होते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेंसरी जो फाइबर्स होते हैं दे आर ऑल लेस देन 10 माइक्रोमीटर. इट इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस अनलाइक एनी अदर पेरिफेरल नर्व. बाकी कोई भी नर्व जो है वो मेनिंजेस से सराउंडेड नहीं है. ठीक है, इसके जो प्राइमरी एंड सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दोनों दे आर अराइजिंग इन दी रेटिना. ऑप्टिक नर्व के पार्ट्स, सी ट्राई टू रिमेम्बर. देखो ऑप्टिक नर्व जो है जैसे ही स्क्लेरा को पियर्स करेगी बाहर, आई बॉल के तो अंदर है ना, आई बॉल के अंदर है ना वो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट. इज इट क्लियर? इंट्रा मतलब आई एम सॉरी, पियर्स करने से जस्ट पहले बाहर जब फॉर्म हो रही है दैट इज इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट. उसके बाद वो आई बॉल के अंदर ही है तो इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट. ऑर्बिट हो गया ना आई, तो बिहाइंड है, आई बॉल के पीछे है और ऑर्बिट के लेकिन अंदर ही है तो दैट इज इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट. उसके बाद वो ऑप्टिक कैनाल से बाहर आती है ना? क्रेनियल फॉसा पढ़े ना क्लास में? अभी नहीं क्लास. ऑप्टिक
कनाल से बाहर आती है, तो ऑप्टिक कनाल में जो पार्ट है दैट इज नोन एज इंट्रा कनालिकुलर पार्ट, ठीक है, एंड वहां से वो मिडिल क्रेनियल फॉसा में एंटर कर जाती है, दैट इज इंट्रा क्रेनियल। ओके, तो यस, it is almost 47 to 50 mm long, divided into 4 parts: intraocular, intraorbital, intracanalicular and intracranial. Of course उसने ब्रेन में तो जाना ही है, ठीक है। See, I have tried to show you here. See this. This is the eyeball. This is the eyeball here. Can you see? You can here appreciate the 4 parts. This is the intraorbital part. Yeah, this is the canacular part, and this is the here optic chiasma. This is the intracranial part, and here it forms the optic chiasma. तो ऑप्टिक chiasma में भी तो खत्म हो जाएगी ये ऑप्टिक नर्व। ओके, सॉफ्ट पार्ट में आपको जैसे ऑप्टिक नर्व दिखाई देगी। ये आई बॉल है हमारी, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, हियर यू कैन सी दिस इज द स्मॉल पार्ट जो पियर्स करता है स्क्लेरा को, ठीक है ना, दिस इज ओके। नाउ एंड दिस पार्ट इंट्रा ऑर्बिटल, ओके, एंड यहां पर हमारी ये बाहर आ गई थर्ड पार्ट, दिस इज इंट्रा कनालिकुलर, जो ऑप्टिक कैनाल में से पार्ट हो रहा है, and this is intracranial. Okay, intraocular part, see we have details of this intraocular part also, but it is not in your syllabus, so you need not stress about it. ठीक, हम लोग सिर्फ जो पॉइंट्स आपसे रिलेटेड हैं we will discuss them only. इंट्राओक्यूलर पार्ट जो है, आपको जो चीज याद रखनी है वो ये कि जहां पर वो पियर्स करके बाहर आ रही है डिस्क पे, ऑप्टिक डिस्क पे जहां से पियर्स करके वो बाहर आ रही है, दैट इज ओनली द इंट्राओक्यूलर पार्ट। ओके, यू शुड नो दिस मच ओनली। अगर इसके डिटेल लेयर्स में जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा है आपके लिए। ओके, नाउ इंट्राओक्यूलर पार्ट के टॉपर्स जो चाहते हैं, टॉप हाई स्कोरिंग चाहते हैं, वो लोग इस स्लाइड की कॉपी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, ठीक है, कि 4 लेयर्स होते हैं इंट्राओक्यूलर पार्ट में भी, ठीक है। यू कैन टेक पिक्चर इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल, बाकी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता, पर एक या बात याद रखना, हमेशा जब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे आंसर करते हो ना, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन वही शिफ्ट हो जाते हैं। Okay, now next, this is the intraocular part, this is the optic nerve head, this is the optic nerve head, this is the retina, ठीक है ना, रेटिना से ये फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, दे आर पियर्सिंग द स्क्लेरा हियर, ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है हमें, दिस इज द इंट्राओक्यूलर पार्ट, एंड वंस इट पियर्सेस इट कम्स आउट। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट। ओके, नाउ नॉर्मल डिस्क, ऑप्टिक डिस्क मैंने कहा ना, ऑप्टिक डिस्क जो होती है वो हमें आई का अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं, अगर आप देखोगे तो इट अपीयर्स पिंक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ्थेल्मोस्कोप, वी सी द आई थ्रू इट, आई मीन ऑप्टिक डिस्क का जो एग्जामिनेशन है वो हम ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू करते हैं, तो इट अपीयर्स पिंक इन कलर, पिंक इन कलर। उसका कारण क्या होता है, पिंक क्यों दिखता है हमें? क्योंकि वहां पर एनीबडी, पिंक क्यों होगा? हमारे पास क्या चीज है पिंक बॉडी में? ब्लड है ना, रेड का ही तो पिंक टिंज है, पिंक, ठीक है। तो वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो थ्रू ग्लायल टिश्यू जो हमें दिखाई देते हैं, दैट अपीयर्स। इसमें पिंक को हमने इतना एम्फसाइज क्यों किया?
क्योंकि अगर हमारा ग्लायल टिश्यू ज्यादा होगा तो हमारे पास व्हाइट रिफ्लेक्स आनी शुरू हो जाएगी उतनी ज्यादा। अगर हमें पिंक दिख रही है डिस्क, इसका मतलब हमारा ग्लायल टिश्यू बैलेंस्ड है और हमें पिंक दिख रहा है वो, ठीक है। जैसे ग्लायल टिश्यू समझते हो, आफ्रेंट न्यूरॉन्स है ना, वहां पे न्यूरॉन्स ग्लायल टिश्यू में तो है। अगर हमारा ग्लायल टिश्यू का कंटेंट बढ़ना शुरू होगा तो व्हाइट रिफ्लेक्स आनी शुरू हो जाएगी वहां से। ओके, कोई बात नहीं, ऑफ्थेल्मोलॉजी में पढ़ोगे डिटेल में सब, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस तरह दिखाई देती है ये। यस कम इन। ऑप्टिक डिस्क जो है वो इस तरह दिखाई देती है हमें, ये पिंक कलर की। ओके, नाउ इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट। इंट्रा ऑर्बिटल मतलब स्क्लेरा को पियर्स करके बाहर आ गई हमारी, लेकिन अभी ऑर्बिट के अंदर ही है, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं होती, ये साइनस कर्व होता है इसमें, साइनस कर्व होता है। क्यों होता है साइनस कर्व? कई जगह पढ़ोगे बॉडी में साइनस कर्व होता है। क्यों क्यों होगा सोचो। हमें मतलब कोई चीज को टॉर्चुअस कोर्स देने की जरूरत क्यों पड़ती है? मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, हमें मूवमेंट देने हैं। जहां पर आई बॉल मूवमेंट है ना, आई बॉल में, आई बॉल को आप रोटेट करते हो ना, तो अगर हम बिल्कुल सीधी कोई चीज को लगा देंगे वहां पे तो वो रोटेट कैसे करेगी? मीडियली भी, लेटरली भी, ऊपर नीचे सब जो देख रहे हो आप, कैसे देखोगे अगर हम बिल्कुल ऑप्टिक नर्व को स्ट्रेट लगा देंगे? तो वी हैव टू गिव सम स्पेस फॉर ऑप्टिक मूवमेंट्स। इसीलिए इंट्राऑर्बिटल पार्ट जो होता है इट इज लूज, साइनस कोर्स होता है इसका। ओके, यस। Intraorbital part is important because here central retinal artery accompanying its vein enters here 10 mm from the eyeball. This is important. 10 mm from eyeball. eyeball से 10 mm की दूरी पर central retina जो vein जो है and artery both they enter into the optic nerve. Okay. शीथ जो है हमारी ड्यूरल शीथ को पियर्स करके सेंटर में बिल्कुल ऑप्टिक नर्व के सेंट्रल या आर्टरी आ जाती है, दैट इज सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना और सेंट्रल आर्टरी वेन ऑफ रेटिना, ये दे बोथ पियर्स। ओके, दिस पार्ट इंट्राऑर्बिटल पार्ट इज कवर्ड बाय मेनिंजेस। तो सबअरेक्नोइड स्पेस उसमें CSF सब कुछ यहां तक होगा। ओके, इंट्राऑर्बिटल पार्ट एंड दिस विल एंड अप एट स्क्लेरा। स्क्लेरा से ये डिफ्यूज हो जाएगा जाके, शीथ जो है ड्यूरल कवरिंग्स होंगी वो स्क्लेरा के साथ डिफ्यूज हो जाएंगी एंड दे विल एंड अप देयर। यानी कि हमारा इंट्रा यस उसके अंदर इंट्राऑर्बिटल पार्ट में ही सिर्फ मेनिंजेस लास्ट है वहां तक, ऑक्यूलर पार्ट में नहीं है, ऑक्यूलर पार्ट में मेनिंजेस कवर नहीं है। ओके, सिर्फ हमारा इंट्राऑर्बिटल पार्ट में मेनिंजेस हैं और वहां से स्क्लेरा में ब्लेंड कर गई वो। इंट्राऑक्यूलर पार्ट जो है ये बाहर कैसे एग्जिट करेगा? थ्रू ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल में ओपनिंग है, वहां पे हमने पढ़ा है कुछ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, वहां एक चीज पढ़ी है आपने, एक लिगामेंट ऑफ जिन होता है, एन्युलस ऑफ जिन, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? ऑल द 4 रेक्टल मसल्स, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर रेक्टल मसल्स दे गेट इंसर्टेड। तो जब ऑप्टिक नर्व वहां पे निकल रही होती है बाहर तो वो भी तो टच में आ रही है ना इनके, इन मसल्स के, स्पेशली सुपीरियर और जो सुपीरियर रेक्टस है और मीडियल रेक्टस मसल्स होती है, इसके फाइबर्स जो होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स के साथ स्टिक ऑन हो जाते हैं, सुपीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन,
अगर न्यूराइटिस हो रही है, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है ऑप्टिक नर्व की या आई की, तो क्या होगा? क्योंकि ये मसल्स के कुछ फाइबर्स इन्वॉल्व हैं, तो मीडियल और सुपीरियर रेक्टस के मसल्स के फाइबर्स, तो इन मूवमेंट्स में पेशेंट को पेन कंप्लेंट होगी. देयर विल बी ऑफ्थैल्मोप्लीजिया इन मूवमेंट्स. पेशेंट बोलेगा जब मैं सुपीरियरली देखता हूँ और जब इधर मीडियली देख रहा हूँ तो मेरे को पेन हो रहा है. तो यू विल गेट टू नो कि इसका मतलब ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व है आपकी, क्योंकि कुछ फाइबर्स इसके ऑप्टिक नर्व तक जा रहे हैं. ओके, तो ऑप्टिक नर्व का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ये सुपीरियर रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस, इसके जो मूवमेंट्स हैं इसमें पेशेंट को पेन की कंप्लेंट होगी, ऑफ्थैल्मोप्लीजिया होगा उसको. ओके, इंट्राऑर्बिटल पार्ट के रिलेशंस, कुछ रिलेशंस जो मैंने लाइन डाउन किए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने. We will see the diagram also. The long and short ciliary nerves. The long and short ciliary nerves and same name vessels. That means long, short ciliary nerves and arteries. They surround the optic nerve before these enter the eyeball. ठीक है, आई बॉल में जब एंट्री करेगी ऑप्टिक नर्व, उसके पहले लॉन्ग एंड शॉर्ट सिलियरी नर्व्स एंड वेसल्स उसको कंप्लीटली सराउंड कर लेती हैं. ठीक है, ऑप्टिक नर्व और लेटरल रेक्टस, अभी हमने पढ़ा था सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस. तो ऑप्टिक नर्व और लेटरल रेक्टस के बीच में सिलियरी गैंग्लियन प्लेस्ड होता है. सिलियरी गैंग्लियन इज प्लेस्ड. ठीक है ना. उसके अलावा ये आपसे पूछी जाती है ये चीज, डिविजन्स ऑफ द oculomotor nerve, oculomotor nerve, divisions of the oculomotor nerve, nasociliary nerve and sympathetic and abducent nerve. अगर आपको क्रेनियल फोसा जब आप देखोगे तो उसमें ये लाइन से हैं स्ट्रक्चर्स, आपको वो वहीं से एंट्री ले रहे हैं. ऑप्टिक कैनाल के जस्ट बगल में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है. सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से यही स्ट्रक्चर्स एंट्री ले रहे हैं. तो ये ऑब्वियस है लैटरल रिलेशन में आ जाएंगे. ठीक है, ये देन यू कैन कोरिलेट द टू थिंग्स. एम आई क्लियर? ऑप्टिक नर्व और लेटरल रेक्टस मसल्स के बीच में आपसे रिलेशंस पूछते हैं. दे आर सिलियरी गैंग्लियन, डिविजन्स ऑफ द oculomotor nerve, ONA, वहां फॉर्मूला पढ़ोगे आप. oculomotor nerve, nasociliary nerve and abducent nerve, ONA. अब याद रहेगा, यही चीज आप सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में पढ़ोगे, यही फॉर्मूला. ओके, ophthalmic artery, superior ophthalmic vein and nasociliary nerves, they cross superiorly from lateral to medial side. lateral से medial side पे क्रॉस करके आ जाती है superiorly. अभी we'll see this here. See, this is the eyeball. Here you can see ये optic nerve यहाँ से enter कर रही है optic nerve. Is it clear? Here you can see this is nasociliary nerve. यहाँ पे ना बहुत सारे नए नाम होंगे मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए. इथमोइडल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल. कहाँ होगा इथमोइड? यस, ठीक है ना. इथमोइड जो है हमारी वो नोज में पड़ी है ना इथमोइड. सी आई यहीं तो रखी है साइड में, सेंटर में नोज है हमारे. ठीक है, तो जो मीडियल कंपार्टमेंट, मीडियल वॉल है हमारी नोज की, उससे जो चीज पियर्स करके जाएगी वो सब नोज के अंदर ही तो एंटर करेगी. डू यू गेट माय पॉइंट? और लैटरली जो चीज ऑर्बिट के लैटरली कोई चीज पियर्स कर रही है तो वो यहाँ पर क्या है हमारा ज़ाइगोमैटिक बोन पढ़ी है ना हमने. ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो ज़ाइगोमैटिको फेशियल, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल, ऐसे तो पढ़ेंगे. समझ आ रही है मेरी बात? और जो आगे की तरफ आएगी पियर्स करके वो फोरहेड या इस तरफ आएगी, जो मीडियली पियर्स करेगी वो नोज की तरफ जाएगी. ठीक है, ट्राई टू पुट द थिंग्स ऑन प्लेस तो यू विल गेट इट. याद रखने की मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो.
ओके, तो नेजो सिलियरी नर्व यानी वो नोज की तरफ आ रही है, यानी उसने मीडियली ही आना है। एम आई क्लियर? इंट्राकैनालिकुलर पार्ट, दैट मीन्स द पार्ट विच इज ट्रेवलिंग थ्रू द ऑप्टिक कनाल। ओके, हमने ऑप्टिक कैनाल में स्ट्रक्चर्स पासिंग में पढ़े हुए हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्टिक नर्व। ओके, यहाँ इंफीरियरली, यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है ये देखो कि यहाँ पे इंफीरियरली हमारी क्रॉस कर रही है वो, मीडियल से लैटरल। ओके, ऑप्थेल्मिक आर्टरी अभी हमने पढ़ा था, वहां पे सुपीरियरली क्रॉस कर रही थी, ठीक है, यहाँ पे इंफीरियरली क्रॉस कर, नर्व्स वगैरह बाकी सब चीजें सुपीरियरली क्रॉस कर रही होती है एक्सेप्ट हेयर, यहाँ पे ऑप्थेल्मिक आर्टरी ऑप्टिक नर्व को इंफीरियरली क्रॉस कर रही होती है। ओके, इट लीव्स द शीथ। रिलेशन में यहाँ और क्या होंगे, साइनसेस होंगे, है ना, स्फीनोइडल एयर साइनसेस एंड इथमोइड एयर साइनसेस। इंपॉर्टेंट इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये जो इंट्राकैनालिकुलर पार्ट है, अगर इथमोइड और स्फीनोइड एयर साइनसेस में कोई इन्फेक्शन होता है, ओके, साइनोसाइटिस पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना तो होगा कम से कम, है ना। साइनोसाइटिस डिजीज जो होती है उसके अंदर साइनसेस इन्वॉल्व होते हैं हमारे, एयर साइनसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर साइनसेस नॉट वीनस साइनसेस। ओके, तो एयर साइनसेस जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे साइनोसाइटिस के अंदर, उनके अंदर ये नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं साइट, हम कैसे, स्फीनोइड और इथमोइड एयर साइनसेस जो है वो बाहर से तो हमें दिखते ही नहीं किसी तरीके से। पेशेंट की जो कंप्लेंट होती है वो ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट की ही होती है ज्यादातर। पेशेंट टिपिकल कंप्लेंट होती है कि उसके ऑफ्थेल्मोप्लीजिया होता है, तो इसलिए आप आइडेंटिफाई ही इसे ऐसे करते हो। ओके, now intracranial part. Intracranial part में when I was dealing with cavernous sinus, I told you that yes, two structures which pierce the cavernous sinus, they are, मैंने specifically emphasis देके ये बात बोली थी, two structures which pierce the cavernous sinus, through and through निकल जाते हैं उसके, yes, and internal carotid artery, abducent nerve and internal carotid artery। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे वाइवा में। टू स्ट्रक्चर्स विच पियर्स द कैवर्नस साइनस, स्ट्रक्चर्स विच आर इन द लैटरल वॉल ऑफ द साइनस। ओके, ये क्वेश्चन एज इट इज ही उठा के या तो स्पॉटिंग में रख दिए जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, मेनिंजियल शीथ्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व। इंट्राक्रेनियल पार्ट में पाया मैटर ही है, मतलब ड्यूअल शीथ जो होगी वो नहीं होगी, ऑब्वियस है, वो बाहर होती है ना, तो जब एग्जिट होती है क्रेनियल कैविटी से, यानी ऑप्टिक कनाल में जब नर्व एंटर करती है तब ड्यूअल शीथ उसे एसोसिएट करती है। ओके, वंस इट इज इन द क्रेनियम, इंटीरियर क्रेनियल फॉसा के अंदर ऑप्टिक नर्व जब है तब उसके अंदर ड्यूअल शीथ डेफिनेटली नहीं होगी। ड्यूअल शीथ इज इट सराउंड्स द नर्व वंस इट टेक्स एन एग्जिट फ्रॉम द क्रेनियल कैविटी, दैट इज ऑप्टिक कैनाल। जब वो ऑप्टिक कैनाल में एंटर कर रही है तब ड्यूअल शीथ उसको एसोसिएट करेगी। ओके, तो इंट्राकैनालिकुलर एंड जो इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट है इसमें एसोसिएटेड है हमारी तीनों लेयर्स। Now, arrangement of the nerve fibers in the optic nerve. क्यों पता होनी चाहिए हमें, क्यों इंपॉर्टेंस इसकी? ये फाइबर्स का अरेंजमेंट आप स्पाइनल कॉर्ड में भी पढ़ोगे, और मतलब हम फाइबर्स का अरेंजमेंट सब जगह देखेंगे। सोच सकते हो क्यों हम लोग इस स्ट्रक्चर, मतलब इस डिटेल को हम देखते हैं? क्योंकि हम लोगों को ये डिफाइन करना होता है कि इन्वॉल्वमेंट जो है अगर बाहर से है तो कौन से फाइबर्स जा रहे हैं, सेंटर में से है तो कौन से फाइबर्स जा रहे हैं, कॉजेज ही अलग होंगे। इमेजिन आई टोल्ड यू कि रेटिनल आर्टरी और वेन जो है वो हमारी सेंटर में है,
अभी मैंने बोला सेंट्रल आर्टरी होती है रेटिना में और आई उसमें, तो यानी कि अगर सेंटर में फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब कोई आर्टीरियल या वीनस कॉज है। एम आई क्लियर? और अगर बाहर से हमारे फाइबर्स, पेरिफेरल फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर जो ड्यूरल शीथ है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ है ना, उस पर प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर नेक्रोसिस। तो जो प्रेशर नेक्रोसिस होगी तो कौन सी फाइबर्स सबसे पहले इन्वॉल्व होंगी? जो बाहर की तरफ है, पेरिफेरल फाइबर्स, दे विल बी इन्वॉल्व फर्स्ट। अगर मेनिंजाइटिस हो रही है, बाहर शीट्स में मेनिंजाइटिस है, तो कौन सी फाइबर्स? पेरिफेरल फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। और अगर वैस्कुलर रीजंस हैं तो सेंट्रल फाइबर्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? तो इसलिए हम लोगों को अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स जो है वो पता होने चाहिए कि हमारे फाइबर्स किस तरह अरेंज्ड हैं। ओके, तो रेटिना में जैसे कि फाइबर्स अरेंज्ड हैं वैसे ही हमारे ऑप्टिक नर्व में भी अरेंज्ड है। जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना होता है उसके सबसे सेंटर में होते हैं फाइबर्स। समझ में आ रही है? सबसे सेंटर में हमारे सबसे पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना होता है। क्रॉस, समझ में आ रहा है? सबसे कोने से जो फाइबर्स हैं वो सेंटर में आ रहे हैं। ओके, नहीं समझ में आया? सबसे पेरिफेरल पार्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और जो सेंटर के फाइबर्स हैं वो डिस्टल होते जा रहे हैं, एक्सोन्स लंबे हैं हमारे, इसका मतलब। और सुपरफिशियल और डीप में अगर आप देखोगे तो जो सेंटर के जो फाइबर्स होते हैं, सेंटर में जो फाइबर्स होते हैं वो सबसे सुपरफिशियल, रेटिना के सबसे सुपरफिशियल फाइबर्स, मतलब डेप्थ में जो सबसे पहले रेटिना में आगे फाइबर्स हैं वो ऑप्टिक नर्व में अंदर जाके वो सबसे सुपरफिशियल हो जाते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगी, देखो ये बात। जो ऑप्टिक नर्व में, रेटिना में जो सबसे आगे फाइबर्स आ रहे हैं वो नर्व में सबसे सुपरफिशियल है। जो रेटिना में सबसे पीछे फाइबर्स है, फाइबर्स अरेंज्ड है ना वहां पर भी, तो फाइबर्स दे आर अरेंज्ड देयर, वो ऑप्टिक नर्व। देखो रेटिना तो ऐसे है, पर्दा है वो तो पूरा। डू यू गेट माय पॉइंट? रेटिना इज लाइक कर्टेन। इसे ऑप्टिक नर्व तो राउंड है ना, हमें वहां अरेंज करने सारे फाइबर्स, ठीक है। तो जो फाइबर्स सबसे आगे होंगे वो सबसे सुपरफिशियल होंगे, और जो सेंटर में फाइबर्स हैं वो सबसे पीछे वाले होंगे। अगर आप इस चीज को समझो, आप अरेंजमेंट करने की कोशिश करोगे तो जो सबसे पीछे वाले फाइबर्स हैं वो सबसे पहले सेंटर में आएंगे और आगे के फाइबर्स सब उसको सराउंड करते हुए, मतलब उसके ऊपर लेयर्स बनाते हुए जाएंगे। समझ में आ गया? ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर, यू विल गेट इट, क्योंकि ये अरेंजमेंट आप सब जगह पढ़ोगे। आप जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे उसमें, स्पाइनल कॉर्ड में भी जो हमारे नर्व ट्रैक्स ऊपर जाते हैं उसमें लोअर लिम्ब के फाइबर्स सबसे सेंटर में होते हैं। जैसे जैसे हम राइज अप होते हैं ना, फिर एब्डोमेन आएगा, फिर उसके बाद थोरैक्स आएगा, फिर उसके बाद अपर लिम्ब आएंगे, तो अपर लिम्ब के फाइबर्स सबसे बाहर होते हैं। यू गेट माय पॉइंट? वहां पर भी यही अरेंजमेंट होता है। तो जो सबसे आगे जो फाइबर्स होंगे वो सेंटर में होते हैं रेटिना के। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। अभी नई चीज लग रही है इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा ना। पर आप एक चीज, मतलब सिर्फ एक चीज समझ लो कि हम लोग जो फाइबर्स होते हैं ना वो नेजल एरिया, टेम्पोरल एरिया और बीच में जो दिख रहा है ना रेड रेड सा, मैक्यूलर एरिया, इसमें डिवाइड करके पढ़ते हैं। नेजल का मतलब हमने जो अपनी आई फील्ड है ना इसको नेजल, ठीक है, हाफ में कर दी, नेजल हो गई, ये टेम्पोरल हो गई। ये तो समझ में आ रहा है ना? फील्ड्स तो समझ में आ ही सकती है, अभी फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में समझ लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नेजल फाइबर्स, टेम्पोरल फाइबर्स, अपर और लोअर भी है, ये समझ में आ गया चारों क्वाड्रेंट्स। और इसके अलावा सेंटर में है हमारा मैक्यूलर एरिया। आगे समझो, ये अरेंजमेंट हम बाद में याद कर लेंगे, इतना याद कर लो अभी। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको? नेजल, टेम्पोरल, अपर लोअर और बीच में मैक्यूलर।
मैक्यूलर तो चारों में है कॉमन। ऑप्टिक डिस्क एडिमा, अभी मैंने बताया ना सीएसएफ से सराउंडेड है, तो ऑप्टिक डिस्क एडिमा जिसे हम कहते हैं पेपिलिडीमा, पेपिलिडीमा इट इज द साइन ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ओके, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब हाई होता है, क्यों हाई होगा तो यहां क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है वो? यहाँ की कथा सुना दी तुम लोगों को, अब पूछ रही हूँ राम जी कौन थे, तो सब गायब। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बच्चों ऑप्टिक नर्व में क्यों रिफ्लेक्ट होता है? क्रेनियल पार्ट नहीं बेटा, क्योंकि मेनिंजीज आ रही है वहां पर, सब एरेक्नोइड स्पेस आ रहा है वहां पर, उसके साथ सीएसएफ आ रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ रहा है वहां पर। तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होगा तो सीएसएफ में चेंजेस आएंगे और वो रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पर। तो वी कैन सी दैट थ्रू ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू हमें वो एडिमा दिखाई देगा। अभी मैंने इतना भाषण दिया था तुम्हें, पिंक कलर की डिस्क जो है उसमें व्हाइट रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाएगा, अभी इतना बड़ा भाषण दिया था उसके ऊपर। बच्चों कोरिलेट करो, एनाटॉमी को कोरिलेट करके पढ़ोगे उतना इजी रहेगा, ठीक है ना। अप्लाई करनी जरूरी, एक होता है नॉलेज होना, एक होता है उसको अप्लाई करना। और मैं हमेशा इस बात को एम्फासाइज करती हूँ कि आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर उसे अप्लाई करो। ट्राई टू अप्लाई एनाटॉमी ऑन योर ओन बॉडी, तो यू विल गेट टू नो थिंग्स। ऑप्टिक नर्व का इंफाक्शन कैसे हो सकता है? इंफाक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? बेसिक वर्ड्स तो पढ़ो मेडिकल के। इंफाक्शन मतलब हमने किसी चीज की वैस्कुलर सप्लाई डैमेज कर दी तो इन्फाक्ट हो गया वो एरिया, समझ में आया? थ्रोम्बोसिस, क्लॉट बन गया तो क्या हुआ बेटा? वीनस ड्रेनेज ब्लॉक कर दी। समझ आ रही है मेरी बात का? इन्फाक्ट और थ्रोम्बोसिस में डिफरेंस क्या है? इन्फाक्ट के अंदर क्या किया हमने? आर्टेरियल सप्लाई काट दी उस एरिया की, तो वो एरिया इन्फाक्ट हो गया। डू यू गेट माई पॉइंट? थ्रोम्बोसिस मतलब हमने वीनस ड्रेनेज में ब्लॉकेज कर दी, यानी कि अब क्या होगा, वहां ब्लड आ तो रहा है पर वो वापस नहीं आ रहा, यानी कि वहां पे एडिमा डेवलप हो गया ना। डिफरेंस समझ में आ रही है दोनों बातों में? इन्फाक्ट के अंदर क्या हुआ, वहां उस एरिया की ब्लड सप्लाई ही उड़ गई। ये टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, आप इनको समझोगे नहीं तो मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। आगे बात समझिए, इन्फेक्शन क्या होता है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है। तो ऑप्टिक नर्व का इन्फेक्शन कैसे होगा? जो उसकी नर्व मतलब जो उसकी आर्टेरियल सप्लाई है, दैट इज सेंट्रल आर्टरी जो है वो हमने डैमेज कर दी, मतलब वो सप्लाई, ठीक है। थ्रोम्बोसिस से हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन से कैसे डैमेज हो सकती है, इन्फेक्शन होगा। हाइपोटेंशन से तुम कैंसिल कर दो किसी की, हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो ऑब्वियस है हर जगह किसी ब्लड सप्लाई होल्ड कर ली जाएगी ना, मतलब मिनिमम पे काम करेगा ना, तो बहुत सारे ऑर्गन शट डाउन कर देती है बॉडी उस समय। इमरजेंसी समझते हो? इमरजेंसी समझते हो ना? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक गायब ही हो गया सबका। जब आपको बहुत तेजी से भागना होता है, हार्ट तैयार करता है ना, बॉडी तैयार करती है ना हार्ट को, दैट इज व्हाट, इमरजेंसी। तो सेम हियर, हाइपोटेंशन जब लैंड करती है तो इट इज एन इमरजेंसी। तो बाकी जगह की सप्लाई जो होती है वो मतलब जो नेसेसरी एरियाज है वहां पर सप्लाई जाएगी, बाकी जगह की कैंसिल कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी एटलीस्ट। ओके, स्कल फ्रैक्चर इंजरीज, बेस ऑफ स्कल जब इन्वॉल्व होता है या ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स होते हैं,
बोन में फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर भी डैमेज होता है, ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होती है उसमें। वीनस ड्रेनेज ऑप्टिक नर्व का, सेंट्रल रेटिनल वेन, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, सेंट्रल रेटिनल वेन। आपके बाकी डिफरेंट पार्ट्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ ऑप्टिक नर्व की वेनस सेंट्रल, मैंने कहा था ना सेंट्रल रेटिनल वेन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन। ये सेंट्रल रेटिनल वेन दिखाई दे रही ना एंटर करती हुई, ये देखो यहां से एंटर कर रही है ना, ये यहां से शीथ को पियर्स करके ऑप्टिक नर्व के सेंटर में आ गई और ये यहां से डिवाइड होगी ब्रांचेस में। पूरा पैटर्न है ब्रांचेस का, बट यू नीड नॉट टू लर्न। ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शन के, रिड्यूस्ड विजन, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज होती है, अब इट डिपेंड्स कि वो पार्शियल डैमेज है कंप्लीट है, बट रिड्यूस्ड विजन, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस जो होंगी वो, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, फील्ड इफेक्ट्स क्यों होंगे, डिपेंड्स कि कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व है, टेम्पोरल फील्ड है, नेजल फील्ड है, अपर है, लोअर है, मैक्युलर फाइबर्स गए हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व है, उस हिसाब से विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है। डिस्क्रोमेटोजी, एडीबीटी वर्ड से कुछ कुछ समझ में आ रहा है वैसे? क्रोम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? अगर आप कलर डिसफंक्शन है, कलर आइडेंटिफाई नहीं कर रहे ढंग से, ओके, लाइट सेंसिटिविटी डिमिनिश हो गई, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी डिमिनिश हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ये डिफरेंट अप्लाइड वो हैं कि आपकी कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। ऑप्टिक फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ऑप्टिक डिस्क हमें दिखाई देती है, उसमें डिस्क एडिमा दिख सकता है, हमें हाइपर ईमिया दिख सकता है। हाइपर ईमिया मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, और हाइपो मतलब कम, ईमिया मतलब ब्लड सप्लाई। ओके, तो हाइपरईमिया मतलब इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, पेलनेस मतलब डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। कोई चीज पेल कैसे होगी? सप्लाई उसकी कम हो गई, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। एट्रोफी मतलब चीज को हमने ना दबा दबा के खत्म कर दिया, लॉस। हाइपरट्रोफी मतलब हाइपरट्रोफी, हाइपर मतलब ज्यादा, ट्रोफी का मतलब हाँ सेल जो है, सेल का साइज बढ़ गया। जब नंबर बढ़ता है तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइपरप्लेजिया। जब सेल का साइज बढ़ जाता है तो हाइपरट्रोफी। सेल का साइज का मतलब लेंथ या हम वेट जो भी हम एक लेके चलते हैं, और हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। ठीक है ना? विजुअल पाथवे के लीजन्स आपको अलग से पढ़ाए जाएंगे। मैं सिर्फ एक बेसिक, अगर पूरी की पूरी ऑप्टिक नर्व जैसे कि वो रेड सिग्नल दिख रहा है हमें, डैमेज हो गई, पूरी की पूरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ द अफेक्टेड साइड। उसके अलावा ये तो क्या है, ये तो सब बच्चे बोल देंगे कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो गई, पर इसके अलावा मैंने अभी तुम्हें कहा था ऑप्टिक नर्व में हमारे लाइट रिफ्लेक्स के फाइबर्स भी कैरी करती है वो, तो दे विल बी एबॉलिशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्स ऑल्सो। ठीक है, ऑफ इप्सिलैटरल साइड एंड कंसेंसुअल साइड। इप्सिलैटरल का मतलब जिस साइड की ऑप्टिक नर्व गई है, यानी राइट साइड की ऑप्टिक नर्व गई है अगर हमारी, तो राइट साइड की लाइट रिफ्लेक्स जाएगी, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जाएगी, और लेफ्ट साइड की कंसेंसुअल साइड की भी जाएगी। समझ में आ गया? जब लाइट रिफ्लेक्स आप पढ़ोगे ना, उसमें दो तरीके की लाइट रिफ्लेक्स पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल। लाइट रिफ्लेक्स व्हेन वी स्टडी इट विल बी टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड कंसेंसुअल। तो सेम साइड की डायरेक्ट और ऑपोजिट साइड की कंसेंसुअल जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट? नियर रिफ्लेक्स, नियर रिफ्लेक्स मतलब
तुम दूर देख रहे हो, सडनली पास देखने लग जाते हो, बुक पढ़े हो, सामने टीवी देखने लग जाते हो, क्या हुआ? ये एकोमोडेशन हुआ ना आई में, दैट इज नियर रिफ्लेक्स। ये वर्ड ज्यादा हो जाएंगे अब, है ना, डैमेज हो जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स के लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएंगे। ओके, ये पढ़ेंगे हम डायग्राम, जो विजुअल पाथवे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, ब्रेन में पूरा, उसमें सारे फाइबर्स की क्रॉसिंग होगा, सब कुछ पढ़ोगे आप। ये है पैपिलिडीमा, दिस इज पैपिलिडीमा। देखो नॉर्मल जो है स्वेलिंग, मतलब रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसकी वजह से पैपिलिडीमा होता है। पैपिलिडीमा वर्ड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पहली बात, और उसका मतलब क्या होता है। क्रेनियल नर्व इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब रेज होगा तो जो स्वेलिंग आएगी ऑप्टिक डिस्क की, दैट इज नोन एज पैपिलिडीमा। ये आप डिस्क आइडेंटिफाई नहीं करो चल जाएगा, लेकिन पैपिलिडीमा नहीं पता होगा, ये गलत होगा। ये नॉर्मल डिस्क है, दिस इज द नॉर्मल डिस्क। ऑप्टिक न्यूराइटिस, न्यूराइटिस वर्ड मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, न्यूराइटिस, ठीक है। पेपिलाइटिस का न्यूरोरेटिनाइटिस एंड रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, तीन तरह की न्यूराइटिस है। लोकेशन चेंज करो समझ में आ जाएगी बात। पेपिलाइटिस का मतलब पेपिला, पेपिला जहां पर है उसका, यानी ऑप्टिक डिस्क है जहां पर, ठीक है, दैट इज पेपिलाइटिस। अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन है दैट इज पेपिलाइटिस। न्यूरोरेटिनाइटिस मतलब पीछे इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट में हम चले गए, ठीक है। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस यानी आई बॉल के पीछे जितनी भी पूरी नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, वो इन्वॉल्व है। तो रिट्रो मतलब पीछे, समझ में आ रही है? आई बॉल के पीछे जितनी भी नर्व, ऑप्टिक नर्व जा रही है, अगर वो पूरी इन्वॉल्व है दैट इज रिट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ओके। ऑप्टिक एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब मैंने अभी बताया था ना, हमने खत्म कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। ऑप्टिक एट्रोफी हो गई कंप्लीट, मतलब स्लो डैमेज जिसे कहते हैं ना, दैट इज एट्रोफी बेसिकली। हमने स्लोली स्लोली डैमेज किया चीजों को, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। ब्रेन के सेल्स भी ना अगर यूज ना करो तो डैमेज ही हो जाते हैं, सो ट्राई यूजिंग देम कंटिन्यूअसली। ऑप्टिक न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी क्या वर्ड होगा? न्यूरोपैथी इट इज जो हमारे सिस्टमिक डिजीजेस जब इन्वॉल्व करते हैं नर्व को, क्यों करते हैं सिस्टमिक डिजीजेस इन्वॉल्व? जैसे उसकी आर्टीरियल सप्लाई या वीनस सप्लाई में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी वजह से न्यूरोपैथीज डेवलप होने लगती है। दैट इज न्यूरोपैथी का मतलब ऑल्टर्ड नर्व का जो बेसिक कैरेक्टर है वो ऑल्टरेशन होनी शुरू हो जाती है, दैट इज न्यूरोपैथी, ठीक है। अगर वो पेरिफेरल नर्व में हो रही है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर वो ऑप्टिक नर्व में होती है तो ऑप्टिकल न्यूरोपैथी, ठीक। यस, एक और अभी एक, जस्ट होल्ड ऑन। नाउ ऑप्थेल्मिक वेसल्स वी वर टॉकिंग, बहुत शॉर्ट में और बहुत फटाफट। क्या बात कर रहे हो? ऐसे इतनी जल्दी गिव अप थोड़ा करते हैं। यू आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ क्रीम जिसे कहते हैं ना, ह्यूमन होमोसेपियंस की क्रीम यहाँ बैठी है। हाउ कैन यू गिव अप सो इजिली? वेरी शॉर्ट। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जैसे वो कैवर्नस साइनस को छोड़ती है, दिस इज द ब्रांच। ये मैं इसके रिलेशंस और इसमें नहीं जाऊंगी, मेन चीज जो है ना आपसे जो पूछी जाती है वो है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस। इट टर्मिनेट्स एट
आईलिड पे जाकर वो अपर और लोअर आईलिड को ब्रांच देगी और डिवाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वहां पर। ये है बेसिक चीज, बेसिक डायग्राम जो आपको ध्यान रखना वो ये सी दिस, ये आ रही है हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। सी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, this is the medial wall and this is the lateral wall of the eye. This is the lateral wall of the eye and this is the medial wall of the eye. Okay, laterally देखो lacrimal artery, ये दिया ना इसमें lacrimal artery, this is the lacrimal artery. ठीक है, we have long posterior and short posterior, long posterior and short posterior की वेसल्स ब्रांचेस पढ़ लो आप सबसे। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, आपको नाम पता होनी चाहिए, आपको बाकी कोई चीज नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ एक चीज 10 मिलीमीटर पहले ये एंटर कर जाती है। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे एंटर करती है ऑप्टिक नर्व के अंदर। तो इट एंटर्स 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर, कुछ भी याद रखो, इट डिपेंड्स कि आप किस में याद रखना चाहते हो। एक बिहाइंड आई बॉल पे एंटर होने से पहले 1 सेंटीमीटर और 10 mm पहले सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो उसमें एंटर कर जाती है ऑप्टिक नर्व में। ये डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। ओके, ऑप्थेल्मिक आर्टरी अगेन, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है ये एंड आर्टरी है। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ एंड आर्टरीज है आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर एंड आर्टरीज, व्हाट आर एंड आर्टरीज एंड इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। ये कहीं ना कहीं वाइवा में, कहीं ना कहीं आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा कि क्या मतलब है एंड आर्टरीज से, आपका क्या मतलब है और एंड आर्टरीज कहाँ कहाँ है, क्या रोल एंड आर्टरीज का। हाँ, उनका जो एरिया सप्लाइड होता है वो किसी और से नहीं होता, ओवरलैपिंग एरियाज नहीं होते यहाँ पर। तो अगर एंड आर्टरी आपकी डैमेज होती है तो वो एरिया पूरा इंफाक्ट हो जाता है। ओके, तो सेंट्रल आर्टरी जो है ये भी एंड आर्टरी है। ओके, तो जब ये जाएगी ना तो पूरा एरिया जो उसका है वो डैमेज हो जाएगा। और कहाँ होती है, ब्रेन, ब्रेन में होती है ना, ब्रेन हैज एंड आर्टरीज, ब्रेन में एंड आर्टरी है, इसीलिए तो वहां पे इंफाक्ट होता है तो वो एरिया डैमेज ही हो जाता है। और किडनी, किडनी में भी आपके एंड आर्टरीज हैं। ओके, आपको मैंने कहा ना बॉडी में पता होना चाहिए कहाँ कहाँ एंड आर्टरीज हैं। हमारे जो रीनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर एंड आर्टरीज हैं सारी। इट इज द ओनली आर्टरी विच कैन बी वी कैन सी नेकेड ड्यूरिंग फंडस एग्जामिनेशन। सेकेंड, lacrimal artery, first branch was central artery, second branch is lacrimal artery. lacrimal artery किसको सप्लाई करेगी, lacrimal gland को, lacrimal gland को, ठीक है ना। थर्ड इज सुप्रा ऑर्बिटल, फेस पे कहीं पढ़ी है हमने सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर। यहाँ पे एक चीज समझ में, अगर आप फेस पे ध्यान से देखोगे ना, सप्लाई जो है हमारी, तो सिर्फ फोरहेड की जो सप्लाई है वो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज आ रही है, दैट इज सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर। और आई, ये नीचे की जो सारी ब्रांचेज है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आ रही है। अच्छा, 4 सिलियरी आर्टरीज 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये, लॉन्ग पोस्टीरियर, शॉर्ट पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सिलियरी। एंटीरियर सिलियरी, शॉर्ट सिलियरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर डिवाइडेड इनटू लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो कि लॉन्ग जो पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज हैं दे फॉर्म सर्कुलस आर्टेरियोसस मेजर। आइरिस, जब आप डिटेल में आइरिस पढ़ोगे ना तो आइरिस में 2 सर्कल्स बनते हैं आर्टेरियल प्लेक्स, उसके रिंग्स के, आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। तो जो आउटर सर्कल होता है वो लॉन्ग पोस्टीरियर बनाती है, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज, और जो शॉर्ट सर्कल बनता है अंदर, जो प्यूपिल के अराउंड होता है बेसिकली,
ठीक है ना, वो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज बनाती हैं। ठीक है, ये आइरिस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइरिस में सेंटर में प्यूपिल है ना, आइरिस तो समझ में आता है ना। जो सेंटर में प्यूपिल है ना, तो उसके एक जो प्यूपिल के राउंड बनता है और एक जो बाहर पेरीफ्री पे बनता है उसका, तो दो सर्कल्स बनते हैं। जो बाहर वाला सर्कल है मेजर, वो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज बनाती है, जो अंदर वाला सर्कल है वो शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज बनाती है। हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो आउटर सर्कल है ये लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी, और जो प्यूपिल के राउंड ये बन रहा है ये शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज। ओके, इथमोइडल ब्रांचेस कहाँ जाएंगी? नोज में, एंटीरियर इथमोइडल एंड पोस्टीरियर इथमोइडल। meningeal branches, they will go towards the meninges. muscular branches, eyeball की जो मसल्स हैं सारी उनके लिए muscular branches. medial palpebral branch, वर्ड से समझ में आ रहा है कहाँ जा रही है ये? eyelid. palpebral, देखो palpebral का मतलब क्या होता है? फिशर, ये जो बीच में है ये फिशर, ऊपर और नीचे अपर, अपर पैल्पिब्रा, लोअर पैल्पिब्रा, बीच में पैल्पिब्रल फिशर, यही तो हुआ। ठीक है, तो अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है और बीच में। ठीक है, तो गॉट माय पॉइंट? डॉर्सल नेजल ब्रांचेस एंड सुप्राट्रोक्लियर, 10 ब्रांचेस। थैंक यू।